Starts with the class today. Morning, ma'am. Good morning, all of you. Good Beta. morning, ma'am. Morning. So I was saying, Good let's morning, start. ma'am. Beta. So let's start with the class today, beta. Okay. Uh, wait a minute. Okay. So in the yesterday class, we just discussed about the different functional groups, and we started about the nomenclature. Okay. So now today we are going to start with the continue with the nomenclature only, but the main point which is going the main things we are going to discuss today, is that clear to everyone? Now for today, let me very clear to everyone. First thing, that whenever we do a nomenclature, like when you are going to refer the different books, it is given in the different ways, but everything in common means the same only. Got it? Like मैं आपको कोई पॉइंट पहले बता दूंगी, कोई पॉइंट बाद में आएगा, आप किसी बुक में रेफर करोगे, वहां पे कुछ और होगा, बट एवरीथिंग इन टोटल मीन्स द सेम थिंग ओनली. So just listen very carefully. If you want to note down the things, then please note down the things. Got it? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. so let's just start with this. आज समझने का ज़्यादा है, अगर आप लिखोगे भी नहीं and you will understand the things, then it will be very better. IUPAC. IUPAC nomenclature of organic compounds. Now, what does this IUPAC means? IUPAC full form is, students, it is the International, Union of Pure and Applied Chemistry. very good, it is the International Union of Pure and Applied Chemistry. Nomenclature means naming of the compounds. Okay, nomenclature it means naming of compound. Okay, now what is there कि काफी टाइम पहले when there was no nomenclature, no IUPAC was there, what was used to happen कि जब भी हम किसी कंपाउंड का नेम लिखते थे, we used to write in the common way. Common name means कि when you are going to write in a common way, it can be on the basis of the source, it can be on the basis of the smell, or it can be on the basis of the taste. आप या तो उसको स्मेल करोगे, या फिर आप उसको टेस्ट करोगे, या फिर वो हमें कहाँ से मिला है, इस बेसिस पे वी यूज टू राइट डाउन इट्स नेम. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में यू हैव स्टडीड कि हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड. ओके, and formic acid is what, that is your HCOOH. अब इसका सोर्स क्या होता है, इट्स सोर्स इन द स्टिंग्स ऑफ द रेड एंट. तो रेड एंट के स्टिंग्स में क्योंकि ये प्रेजेंट होता है फॉर्माइ एसिड ग्रुप, तो हमने इसका नाम रख दिया फॉर्मिक एसिड. अगर मैं स्मेल बोलूं, मैं अगर लिखना चाहे तो उसी के आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. हाँ हाँ बेटा, आप कंटिन्यू कर सकते हो अगर यू वांट. Now, for example, on the basis of ये हो गया on the basis of your source. Okay. Now, on the basis of the smell, if I talk about, तो हमारे जो काफ़ी ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे धूप नहीं जाती है, सी मतलब मार्शी एरियाज, आप बोलो कि मार्शी एरियाज मतलब जहाँ पे कीचड़ है और कैनोपी बनी हुई है, धूप बिल्कुल भी नहीं जा पा रही है, दैट टाइप ऑफ द एरियाज, दैट इज योर मार्शी एरियाज. अब मार्शी एरियाज में व्हाट हैपेंस कि जैसे आप जो पेड़ों के पत्ते हैं वो गिरते गए वहां पे मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन होता गया और वो सड़ने लग गए, तो व्हाट हैपेंस कि वहां पे डिकम्पोजिशन हो जाता है एंड देयर प्रोड्यूस द गैस.
अब वो गैस क्योंकि मार्शी एरियाज में प्रोड्यूस हो रही थी तो उसको हमने नाम दे दिया मार्श गैस. दैट इज योर CH4. Then तो मैम दैट इज मीथेन गैस ना? yes, मीथेन गैस. मीथेन को Okay, नाम ma'am. अच्छा आया. ओके, अब मार्शी एरियाज में थी तो हमने उसको नाम दे दिया मार्श गैस. सो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स. अब टेस्ट की बेस पे अगर हम सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी लुक CH3OH. CH3OH जो है बेसिकली इट इज व्हाट, इट इज अ वुड स्पिरिट. लाइक व्हाट हैपेंस कि जब हम लकड़ी को जलाते हैं when we start burning that wood, so थोड़ा तेल तेल सा आने लग जाता है. so because it is we are getting it from the wood, तो हमने उसका नाम रख दिया that it is a wood spirit. now what happens कि पहले जब तक IUPAC नहीं था we used to use this common words only. हम सारे कॉमन वर्ड्स ही कॉमन नेम्स ही यूज करते थे. बट क्या हुआ, लाइक खुशी टोल्ड मी कि मैम मार्श गैस को तो मीथेन गैस बोलते हैं. तो अब एक ही कंपाउंड हुआ लेकिन उस एक ही कंपाउंड के काफी सारे नाम होने लग गए. लाइक जो लोग मार्शी एरियाज में रहते थे उन्होंने इसका नाम रख दिया कि ये तो मार्श गैस है. फिर जो थोड़ा ज्यादा अवेयर थे उन्होंने बोल दिया ये मीथेन गैस है. जो इसको बाय द काउ डंग दे वाज प्रोड्यूसिंग उन्होंने इसका नाम दे दिया बायोगैस है ये. तो एक ही कंपाउंड है बट उसके बहुत सारे नाम हो गए. एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न so many names for a single compound. तो हमारे पास organic compounds तो बहुत सारे हैं. So what happened कि the number of the scientists they sit together at the Geneva, and Geneva is a place name. They sit at the Geneva और उन्होंने अपनी मीटिंग करी. And they started in the meeting कि अब हम एक ऐसा सिस्टम लॉन्च करते हैं जिसके अंदर हम कंपाउंड को, हर एक कंपाउंड को एक नाम देंगे स्पेसिफिक, और वो वर्ल्ड वाइड जो है वही नाम फॉलो होगा. तो देयर दे लॉन्च दिस IUPAC सिस्टम. IUPAC सिस्टम क्या हो गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. गॉट इट? नाउ अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम व्हाट इज देयर, one minute. Yes. Now according to this system what happened कि जब nomenclature start हुआ तो हमने सबसे पहले start किया considering a straight chain hydrocarbons. Now straight chain hydrocarbons I am not going to discuss much with you people because you have already done this straight chain hydrocarbons in your class 10th. Is that like your CH4 is going to called as a methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane. They all are the straight chain hydrocarbons. Is that clear? Yes, ma'am. Okay, इसको repeat करने की जरूरत तो नहीं है ना? Everyone is clear with it? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now at the second number came the branched chain hydrocarbons. Now when we talk about the branched chain hydrocarbons, what is going to be there? There would be a branching. अब आपका जो कार्बन है it is a tetravalent in a nature, isn't it? अब tetravalent in a nature में भी आप जब हाइड्रोकार्बन कह रहे हो, you are saying that they are going to be the hydrogen at every end. Now when you are going to say the branched chain hydrocarbon, it means what is going to happen, your any of the hydrogen, any one of the hydrogen is going to replace by another group. अब जब ये replace होगा by another group तो ये convert हो जाएगा first of all into a CH3. This CH3 group is called as the, in total, in common, it is called as the alkyl group. Okay? अगर आप मीथेन में से या CH4 में से एक हाइड्रोजन एटम निकाल देते हो तो जो ग्रुप हमारे पास बचता है उसको हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप. नाउ एज आपने हाइड्रोजन एटम किस में से निकाला, मीथेन में से निकाला, तो this particular will be called as the methyl group.
मीन्स जो आपका सफिक्स एन था वो रिप्लेस हो गया बाय द सफिक्स आई. फॉर एग्जाम्पल C2H6. C2H6 is what? इथेन. अब अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हो तो क्या हो जाएगा? C2H5. So what is going to be its name? Ethyl. ओके ये आपका सेम ऐसे ही चलता जाएगा. लाइक अगर आपका C10H22 है जिसको हम बोलते थे डेकेन, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ? C10H21, तो ये हो जाएगा डेसाइल. गॉट इट? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, फाइन. ma'am. नाउ मैम C10H22 को क्या बोलेंगे? डेकेन बेटा, डेकेन. इसको लिखना जरूरी है. नहीं नहीं लिखना जरूरी नहीं है, इसे आप समझ लो, बिकॉज ये समझने के लिए, एक बार ही समझ में आया तो लाइफ लॉन्ग के लिए आ गया. ओके नाउ Okay, ma'am. ओके फाइन. इट इज राइटिंग इज एब्सोल्युटली योर चॉइस. आपको लगता है कि आप ऐसे मेमोराइज कर पाओगे, सो यू आर फ्री टू डू. ओके नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग कम्स योर, जब भी आप किसी कंपाउंड का, लाइक व्हेनेवर यू आर गोइंग टू नेम एनी कंपाउंड, तो सबसे पहला उसमें इंपॉर्टेंट होता है वर्ड रूट. ओके नाउ व्हाट डज दिस वर्ड रूट मीन्स? वर्ड रूट का मतलब होता है इट इंडिकेट्स द number of carbon atoms, sorry, present in main chain. मेन चेन को आप यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज अ प्रिंसिपल चेन. ओके जितने नंबर कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं इन योर मेन चेन, दैट विल बी योर वर्ड रूट. क्लियर? नाउ लेट्स लुक. से सपोज आपकी कोई कार्बन चेन है ओवर हेयर, 1 2 3 4 5. अब यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स हैं in this chain? 5 carbon atoms हैं. Isn't it? 1 2 3 4 5. There are the 5 carbon atoms. तो इन 5 कार्बन एटम्स के लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा? पेंटा. ओके दैट विल बी योर पेंटा. अगर आपका कोई, मान लो आपकी चेन है जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन एटम है, तो आपका वर्ड रूट हो जाएगा मेथ. 2 कार्बन एटम्स हैं तो एथ. ओके नाउ यहाँ पे आपको एक पॉइंट जो है जो याद रखना है, दैट इज योर विच पॉइंट, दैट यू हैव टू पुट द एक्स्ट्रा ए. आपको एक्स्ट्रा ए वहां पे लगाना है if you are using the, if you are going to add the primary suffix. This I will tell you later on. Primary suffix to be added to word root. 1 minute students. Okay sorry. Now word root
begins with consonant. Okay, this point I will explain with an example later on. After 4-5 rules we will discuss. इसे सिर्फ आप लोग लिख लो कि आपको अगर आपका प्राइमरी सफिक्स आप ऐड कर रहे हो इन अ वर्ड रूट और आपके वर्ड रूट जो है उसमें जो एंडिंग हो रही है कॉन्सोनेंट से हो रही है, तो यू रिक्वायर टू पुट द ए ओवर हियर. We will look the examples over here. Do not worry. Got it? Now, another point comes over here is what? That whenever you are going to have the, first I introduced, whenever we are talking about the suffix जो है, suffix your, it can be of the two types. दो टाइप के आपके suffix होते हैं. एक हो गया आपका primary suffix and another your secondary suffix. When we are talking about the primary suffix जो है वो हमेशा add होता है to the word root which is indicating whether the carbon is saturated or unsaturated. Again I am repeating, primary suffix is added to the word root no matters whether the carbon is a saturated or unsaturated. मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. हम इसके पीछे वर्ड रूट लगाते हैं to indicate, to show this whether the given compound is your double bond, triple bond or your single bond. अब यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स क्या हो गए? इट मीन्स, मैम एक बार रिपीट करना. ओके बेटा, आई एम रिपीटिंग. एन, इन, आइन. आई एम सेइंग प्राइमरी सफिक्स हमेशा वर्ड रूट के पीछे लगता है ये बताने के लिए कि आपका गिवन कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है. फॉर एग्जाम्पल आपका ये पेंट है, मैंने यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? पेंटेन. अगर आपके यहाँ पे डबल बॉन्ड्स हैं तो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट डाउन टू इट? इथीन. इट मींस कि यहाँ पे आपके वर्ड रूट क्या हो गया? एथ. यहाँ पे आपका वर्ड रूट पेंट था और आपका प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया? इन एंड इन. इज दैट पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस. Yes, ma'am. ओके फाइन. नाउ द अनदर थिंग कम्स कि मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी जो कार्बन चेन है वो बहुत बड़ी है, isn't it? अब उस बहुत बड़ी चेन में देयर कैन बी द पॉसिबिलिटी, से सपोज वो ऐसे है, ओके. नाउ देयर कैन बी द पॉसिबिलिटी कि मेरा डबल बॉन्ड यहाँ पे है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है. देयर इज द पॉसिबिलिटी. Now, whenever you are going to have the two double bonds in a same carbon chain, so you are going to use the primary suffix diene. Okay? You are going to use a primary suffix diene. Got this point? यस. At the same time, अगर आपकी कोई कार्बन चेन है और उस कार्बन चेन में आपके दो ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, तो यू आर गोइंग टू यूज द वर्ड ट्राइआइन. हम फिर पता कैसे चलेगा कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड? सब बताऊंगी बेटा, एक मिनट, आराम से, बहुत आराम से चलेंगे हम. मैंने क्या कहा कि अगर एक बार दिमाग में फिट कर लिया तो लिखने की जरूरत नहीं है. सब बताऊंगी मैं आपको. मैम पॉइंट. हाँ बेटा. मैम अगर यहाँ पर 2 बॉन्ड की जगह अगर 3 बॉन्ड्स होते तो फिर उसको क्या लिखते? ट्राइइन. अगर 4 Okay, होते तो अगर 4 होते तो टेट्रा, 5 होते तो पेंटा. ओके, लाइक दिस इट कम्स. इतना पॉइंट क्लियर हो गया आपको प्राइमरी सफिक्स का? यस मैम. Yes, ma'am. Now the another point.
another thing comes your secondary suffix. अब हम secondary suffix के बारे में discuss करते हैं. Your secondary suffix जो है, it is added to the primary suffix. ओके देखो आप प्राइमरी सफिक्स आप किस में ऐड कर रहे थे, वर्ड रूट में ऐड कर रहे थे आप, और सेकेंडरी सफिक्स किस में ऐड कर रहे हो आप, प्राइमरी सफिक्स में ऐड कर रहे हो. नाउ व्हेन यू आर एडिंग अ प्राइमरी सफिक्स, सॉरी सेकेंडरी सफिक्स, तो सेकेंडरी सफिक्स टेल्स यू द नेचर ऑफ functional group present in an organic compound. Like primary suffix आपको क्या बता रहा था, whether the given substance is saturated or unsaturated. और जो secondary suffix है वो आपको क्या बता रहा है कि आपका functional group का nature कैसा है. Like अब यहाँ पे कल मुझसे किसी ने पूछा था एक क्वेश्चन कि मैम इनको फिर हम बोलेंगे क्या. अब वो क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे दूंगी. फॉर एग्जाम्पल, few functional groups I am discussing over here. अल्कोहल. अल्कोहल को अगर आप सेकेंडरी सफिक्स की तरह इफ यू आर यूजिंग, तो यू आर गोइंग टू यूज द वर्ड ऑल, OL. अगर आप एल्डिहाइड यूज कर रहे हो तो अल. अगर आप कीटोन यूज कर रहे हो तो ओन. अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर रहे हो तो ओइक एसिड. अगर आप एसिड अमाइड का मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ बिकॉज इट इज न्यू टू यू पीपल, CuNH2. एसिड अमाइड यूज कर रहे हो तो इट विल बी अमाइड. इफ यू आर गोइंग टू यूज अ एसिड क्लोराइड होता है COCl. So it will be your oil chloride. If you are using the esters, so it will be whatever your alkyl group, and after that you are going to write down the OH. If you are using a nitrile group, अब नाइट्राइल ग्रुप को हम लोग बच्चे साइनाइड भी बोलते हैं. साइनाइड ग्रुप ये रिप्रेजेंट होता है बाय द CN, तो आप इसको बोलते हो नाइट्राइल. अगर आपका ग्रुप आइसोनाइट्राइल है तो इसको हम आइसो साइनाइड भी बोलते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द NC, जस्ट इसका अपोजिट. और आप इसके लिए फिर यूज करते हो आइसोनाइट्राइल. ओके अगर आप एमाइंस यूज कर रहे हो, दैट इज योर NH2, तो आप यहाँ पे लिखते हो अमाइन. दीज आर द सेकेंडरी सफिक्स. इतना नोट डाउन कर रहे हो आप लोग? नो मैम. Yes, ma'am. Okay, those who are noting down, when you finish, then ma'am. finish. Okay. अब एक और चीज स्टूडेंट्स, besides this also we are having the groups. मैंने यहाँ पे जो मेन हमें बार बार यूज में आएंगे सिर्फ वही इंट्रोड्यूस किया है. ओके मैम आपने लास्ट सेकंड में क्या लिखा है? एमाइन बेटा. Ma'am, what you have written in the Easter? OATE. OATE.
डन बेटा? I'm done. ओके अब यहाँ पे जब भी हम यस बेटा बंद कर दो, ऊपर साइन करो फिर चलना है। 10 मिनट 10 मिनट का भी 10 मिनट भी छोड़ सकते हैं। यस बेटा योर वॉइस इज नॉट कमिंग। अब एक लास्ट पॉइंट टुडे आई विल फिनिश द क्लास फास्ट, हम थोड़ा थोड़ा करके ही करेंगे। एवरीवन इज फॉर एवरीवन माय वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके आज के लिए Yes, ma'am. लास्ट ओके आज के लिए एक लास्ट पॉइंट समझ लो। जब भी आप सेकेंडरी सफिक्स ऐड करते हो प्राइमरी सफिक्स में, तो जो लास्ट में ई आता है टर्मिनल ई, ओके टर्मिनल ई, आप इसको हटा देते हो। ओके और आप कब हटाते हो? इफ secondary suffix begins with vowel, और अगर आपका सेकेंडरी सफिक्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो यू आर नॉट गोइंग टू रिमूव टर्मिनल ए। ओके लाइक आपने लिखा पेंटेन, अब आपका अल्कोहल इज ऑल, इजंट इट? ओ इज वॉवेल, तो आप कैसे लिखोगे इसे? पेंटेनॉल। ओके अगर आपका पेंटेन है और आपका जो ग्रुप है वो है नाइट्राइल, तो आप क्या लिखोगे? पेंटेन नाइट्राइल। इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Okay, now your homework for the today is what students, कि आप लोगों के पास अगर कोई रेफरेंस बुक है तो रेफरेंस बुक, अदरवाइज एक सम फंक्शनल ग्रुप्स एंड क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे रखा है, टेबल दे रखा है आपकी बुक में एक, यस मैम B1 है ना? तो वहां पे क्लास ऑफ कंपाउंड, Yes, ma'am. सुनो बेटा आप ध्यान से, क्लास ऑफ कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, इतना आप सिर्फ पढ़ोगे, ओनली पढ़ना है। ओके Okay, ma'am. Okay, ma'am. सो फॉर टुडे दिस मच ओनली, ताकि ज्यादा बर्डन भी ना हो एंड यू गेट Okay, लर्न ma'am. साइड बाय साइड। Thank you, ma'am. ओके बेटा देन Thank you, ma'am. गुड डे ऑल ऑफ यू।